Hello my dear students, how are you all? I hope all you will be happy, safe and healthy. Dear students, as you know that in the previous lectures, we just discussed about the chapter triangles. In this chapter, we just discussed about BPT, means basic proportionality theorem, that is Thales theorem, converse of it, and then related questions. Clear hai? In the last lecture, we just do a theorem that was midpoint theorem. Clear hai? So now today we will discuss about angle bisector theorem. Angle bisector theorem. What it said? It said that prove that the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides internally in the ratio of the sides containing the angles. Means if we have a triangle set ABC, we have a triangle. I will just draw it here only. We have a triangle ABC. This is triangle ABC, and if we draw the angle bisector of this angle, means this angle is equal to this. Is it clear? AD is the bisector of this angle. Clear hai? Then it divides this side BC, यानी कि BD upon DC will be equals to AB upon AC. What is to be proved? To prove BD upon DC is equals to AB upon AC. Means ये कह रहा है कि if in a triangle, एक triangle के अंदर if we draw a bisector of angle A, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दैट इज AD. तो ये जो सामने वाली साइड होगी AD, इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? मींस BD और DC की रेशो क्या होगी? दैट विल बी जो साइड्स इस एंगल को कंटेन करती है, मींस AB अपॉन AC. BD अपॉन DC दैट विल बी AB अपॉन AC. इज इट क्लियर? यस. गिवन क्या है? गिवन सिर्फ ये है कि इन ट्राइंगल ABC AD is the bisector of angle A. So it means let it is angle 1, this is angle 2, so it will be given that angle 1 is angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. चलिए, ये हमें इसमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि we just draw a line parallel to DA. हमने एक लाइन DA के पैरेलल ड्रॉ कर ली. लेट्स से दिस इज CE. अब हमने क्या किया? इस लाइन को आगे बढ़ा दिया. थोड़ा सा आगे मिल रहा है, थोड़ा सा फिगर को मैं चेंज करके बनाता हूं क्योंकि काफी जाके आगे ऊपर मिलेगा. लाइक दिस इज द फिगर. दिस इज एंगल बाइसेक्टर. सो लाइन विल बी दिस and the produced line will be this. We can say like that. क्लियर है? ये लाइन हमने आगे बढ़ा दी, ये लाइन इसके पैरेलल है. हालांकि अभी भी थोड़ा सा ये सही फिगर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा ये बनेगा. क्लियर है? दिस इज द फिगर. दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज D, and let's say this is E. We just draw construction की draw CE parallel to DA, which means BA produced means BA को आगे बढ़ाने पर, which means BA produced at E. जो BA को आगे बढ़ाने पर कहां पर मीट करेगा? इसको E पर मीट करेगा. इज इट क्लियर? हमने क्या किया? इसको एंगल 1 लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, एंड दिस इज एंगल 4. क्लियर है? नाउ प्रूफ में सबसे पहले देखिए, ये आपको बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा. किस सेंस? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इक्वेशन नंबर हमने 1 बना. क्लियर है?
Now this line is parallel to this. Now DA is parallel to CE. DA CE के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. एंड AC ट्रांसवर्सल है. जब AC ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ये कट करते हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के. नंबर 2 ये भी है ऑल्टरनेट एंगल्स. सिमिलरली वी कैन शो दैट अगेन ये लाइन इसके पैरेलल है और अब की बार BE इज द ट्रांसवर्सल लाइन. जब DA इज पैरेलल टू CE एंड BE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4. Why? Corresponding angles. कैसे हैं ये? These are corresponding angles. These are corresponding angles. Equation number 3. 3 2 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है. Now, since from equation, सीधा लिखे from equations 1 2 and 3. 1 2 और 3 से क्या मिला? 1 is equals to 2 है, 1 equals to 4 और 2 equals to 3 है. 1 की जगह पे 4 रख दो, 2 की जगह पर 3 रख दो. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. अब देखिए, इन ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE में, इन ट्राइंगल ACE के अंदर क्या है? 3 is equals to 4 आ गया. एंगल 3 is equals to एंगल 4. So this represent that कि AC is equals to AE. This represent that AC will be equals to AE. ये हमारे पास एक मेन रिजल्ट आ गया. क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं. जो इसका स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से. थोड़ा सा नीचे स्पेस नहीं होगा हमारे पास. So now in triangle BCE, DA is parallel to CE. DA क्या है? CE के पैरेलल है. और यूजिंग BPT we get that कि BD अपॉन DC will be equals to AB अपॉन AE. ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू AB अपॉन A. इज इट क्लियर? BPT का यूज करके BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE. बट अभी हमने दिखाया कि AC इज इक्वल्स टू क्या है? दैट इज AE. सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. और हमें क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर? सो प्यारे बच्चों, ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स थ्योरम है. इसका इनवर्स भी ट्रू है. मींस अगर आपको ये गिवन है, हो सकता है किसी ट्रायंगल में आपको ये चीज गिवन हो, देन यू हैव टू प्रूव कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. मींस होगा ही होगा. ये अगर बाइसेक्टर है तो ये रेशो जो होगी BD अपॉन DC विल बी AB अपॉन AC, होगी ही होगी. और अगर आपको ये गिवन है कि AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, देन इट मींस कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. दोनों तरफ से ये इक्वल होगा, मींस दोनों तरफ से ट्रू होगा ही. क्लियर है? चलिए अब इसी थ्योरम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्लियर है बच्चे? सो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A. क्या गिवन है कि in triangle ABC AD is the bisector of angle A. AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है. एंड हमें अब ये बाकी सभी डायमेंशंस गिवन है. AB हमें गिवन है
दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, AC हमें गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स, BD हमें गिवन है दैट इज x सेंटीमीटर्स एंड DC हमें गिवन है दैट इज 12 माइनस x सेंटीमीटर्स। क्लियर है? आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज BD। हमें BD भी फाइंड करना है और x भी। x तो हमने फाइंड कर लिया, बल्कि DC फाइंड करना है एज वेल एज DC, क्योंकि ये तो x ही है। अब हमें ये पता है कि अभी हमने क्या किया था, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी, ये वही आ गया उसका बिल्कुल यूज। सो सिंस इन ट्राइंगल ABC AD bisects angle A, so this represent that कि BD upon DC is equals to AB upon AC, angle bisector theorem, angle bisector theorem। अब हमारे पास BD क्या है, BD is x, what is DC, DC is 12 minus x, what is AB, AB is 10, what is AC, AC is 6। क्लियर है ना? क्या करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी विल गेट 6x is equals to 10 into this means 120 minus 10x। is it clear? So this will be 6x plus 10x, that is equals to 120, so this will represent that 16x, that is 120, so x will be 120 upon 16। 4 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 4 जा 16, 4 3 जा 4 0 जा 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 15 अपॉन 2 मीन 7.5 सेंटीमीटर। तो x क्या आ गया आपके पास, 7.5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज DC? DC इज 12 माइनस x, दैट इज 12 माइनस 7.5, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हमारा क्वेश्चन हुआ दैट इज बेस्ड ऑन दैट थ्योरम। यही क्वेश्चन हमें दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था। कैसे? मान लिया अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, अब की बार हो सकता है वो हमें कोई भी 2 या 3 डायमेंशंस दे देगा, 4th डायमेंशंस पूछ लेगा किसकी। जैसे कि मान लिया ये कह दे कि इन ट्राइंगल ABC, सेम ही चीज कह दे कि ABC में AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्लियर है? In triangle ABC, AD is the bisector of angle A, and if you have given that AB is 5.6 centimeters, AC is 4 centimeters, and BC is 3 centimeter, find BC। In triangle ABC, AB is 5.6 centimeter, AC is 4 centimeter, DC is 3 centimeter, find BC। हमने मान लिया कि let BD is equals to x सेंटीमीटर, हमने इसको x मान लिया। क्लियर है? BC हमें फाइंड करना है, तभी फाइंड हो पाएगा जब हमारे पास BD होगा, क्योंकि यह है एंगल बाइसेक्टर, तो यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कंप्लीट लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC AD is the angle bisector of angle A, so BD upon DC that is equals to AB upon AC। so this represent that कि BD को हमने x लिया, DC is 3, AB is 5.6 and AC is 4। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, x is equals to 5.6 into 3 अपॉन 4, 4 से मल्टी डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, this will be 4.2 centimeters। so BD is 4.2 centimeters, so this represent that कि BC is equals to BD plus DC, that is equals to 4.2 centimeters plus 3 centimeters, so this is 7.2 centimeters। is it clear? yes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरम की तरीके से भी आप उसको लेके ट्रीट कर सकते हैं, या सिंपल एक क्वेश्चन भी लेके आप ट्रीट कर सकते हैं।
ये कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल, if angle bisector of an angle bisects the opposite sides, the triangle will be isosceles. ये यहां पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हमें गिवन है ABC, लेट्स से ट्राइंगल इज ABC, इस एंगल का बाइसेक्टर AD ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थ्योरम के हिसाब से, वैसे बहुत इजी है। आगे इसका यूज आप डायरेक्टली कर सकते हो कहीं पर भी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज BC एट D, कि AD क्या करता है, क्यों एंगल A को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, साथ के साथ BC को भी बाइसेक्ट करता है। मींस ये तो दो एंगल्स तो इक्वल है ही है, साथ के साथ ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं। या ये कह लीजिए कि रिप्रेजेंट IE मींस कि BD इज इक्वल्स टू DC। हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब यह है कि हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल्स टू AC है। प्रूफ कि वही चीज लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A, सिर्फ इतना लिख दीजिए, बाइसेक्ट्स एंगल A, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। BD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब हमें यह पता है कि BD किसके इक्वल है, BD इज इक्वल्स टू DC, तो DC की जगह पर भी क्या लिख दीजिए, BD लिख दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो इसका हमें आगे रीजन लिखना पड़ता है कि सिंस BD इज इक्वल्स टू DC गिवन, कि हमें गिवन है कि BD इज इक्वल्स टू किसके, DC के, तो हमने DC की जगह पर BD लिख दिया, इससे ये कट गया, 1 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस रिप्रेजेंट दैट AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC आ गया। और जब AB इज इक्वल्स टू AC आ गया, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल ABC है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन सेगमेंट which joins the midpoints of the oblique sides of a trapezium is parallel to the parallel sides। हालांकि इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का यूज ज्यादा नहीं हो रहा है, ये सिंपली एक बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। कह क्या रहा है एक्चुअल में, सबसे पहले वो चीज समझिए। ये कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है, मान लिया कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD ट्रेपीजियम के अगर आपने जो ऑब्लिक साइड्स मींस जो पैरेलल नहीं है, अगर आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये D है एंड दिस इज E, तो आप अगर इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन DEI है, दिस इज पैरेलल टू दीज टू साइड्स, मींस यू हैव टू प्रूव दैट कि DE इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। गिवन क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है विद AB पैरेलल टू DC and D and E are midpoints and D and E are midpoints of AD and BC। ये आपको गिवन है।
टू प्रूव क्या है? टू प्रूव ये है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू डीई इज पैरेलल टू डीसी। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने? डीए को आगे बढ़ा दिया एंड ऑल्सो बीसी को भी आगे बढ़ा दिया, और ये दोनों यहां पर मीट कर गई। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। हमने क्या क्या कि प्रोड्यूस डीए एंड सीबी विच मीट्स एट पी। हमने इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, और जो कहां पर मिलती है एक दूसरे को, कहां पर मिलती हैं? पी पर मिलती है। अब देखो प्रूफ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चे, सामने देखो, इधर उधर नहीं। कहां पे? इन ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी में, इन ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी के अंदर ए बी तो डीसी के पैरेलल है ही है ना। इन ट्रायंगल पीडीसी ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये तो पहले दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी। और जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यूजिंग बीपीटी वी फाइंड आउट दैट कि पी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी सी बाई बीपीटी, बीपीटी का यूज करके। अब हमें ये पता है कि पी ए अपॉन ए डी। अभी हमें एक बात पता चली थी शुरुआत में, मतलब पता क्या चली थी, गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, या ये कह लीजिए जो ए डी है, ए डी, ए बी सी डी, बेटे हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया है, ये डी नहीं लेना चाहिए था, ये ई ले लिया, चलो ये एफ ले लो, गलती कर दिया, क्योंकि यहां पर क्या है? डी है ऑलरेडी। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम विद एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी। हो जाता है कई बार गड़बड़। सो ये एफ ई, तो हमने क्या लिया? ए डी। ए डी क्या है? ए डी इज डबल ऑफ ए एफ, 2 इंटू ए एफ, एंड इट इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी सी। बी सी क्या है? दैट इज डबल ऑफ बीई, 2 इंटू बीई। क्यों है भाई? गिवन है कि एफ और ई क्या है? ए बी, ए डी और बी सी के मिड पॉइंट से। सो 2 से यहां पर 2 कैंसिल कर दीजिए। क्या मिला हमें यहां से? हमें यहां से मिल गया कि पी ए अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बीई। सो इन ट्राइंगल, अब हम ले लेते हैं पी एफ ई, इन ट्राइंगल पी एफ ई, इन ट्राइंगल पी एफ ई, जब पी ए अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बीई, सो दिस रिप्रेजेंट दैट ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये कब होगा? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दिस रिप्रेजेंट दैट कि ए बी इज पैरेलल टू एफ ई, यही दिखाना था। ए बी पैरेलल होगी एफ ई के, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि ए बी इज पैरेलल टू एफ ई इज पैरेलल टू डी सी। क्लियर है ना? सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ध्यान से समझिएगा, फिगर इसीलिए बना के नहीं दी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ध्यान से देखिएगा, ए डी को ज्वाइन किया गया है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ओ लिया गया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया ओ, कहीं पर भी लिया जा सकता है, ये इसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। और क्या किया गया? फिर बीओ को मिला के आगे बढ़ा दिया गया। सिमिलरली सीओ को मिलाया गया और इसको भी आगे बढ़ा दिया गया। लेट्स से दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। अब क्या किया गया? एडी को भी आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन उसमें एक खास बात कर दी गई, ये एक्स तक बढ़ा दिया। ये खास बात कर दी कि OD इज इक्वल्स टू ओ एक्स, OD इज इक्वल्स टू ओ एक्स। तो गिवन क्या क्या था हमें? D इज मिड पॉइंट
ऑफ BC, क्लियर है, एंड OD इज इक्वल्स टू DX। दो चीज यही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद भी रखनी है और समझनी है। OD इज इक्वल्स टू DX। अब हमें ट्रू प्रूफ क्या था, इसमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था कि AO अपॉन AX दैट इज इक्वल्स टू AF अपॉन AB एंड EF इज पैरेलल टू BC। ये दो चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन किया BX एंड CX, ज्वाइन BX एंड CX। क्लियर है? आपके RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिएगा। क्या था? ABC एक ट्राइंगल है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AD को मिलाया, आगे बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया कि इसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट पहले O लिया AD के ऊपर, BO को मिलाया, आगे बढ़ा दिया E तक, CO को मिलाया, आगे बढ़ा दिया F तक। इसके अलावा AD को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। कितना आगे बढ़ाया गया कि OD इज इक्वल्स टू DX हो जाए। इज इट क्लियर? अब हमें ये जो आपको गिवन है, गिवन था, ये प्रूफ क्या करना था? AO रेशो AX दैट इज इक्वल्स टू AF रेशो AB एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि F इज पैरेलल टू BC। इज इट क्लियर? अब देखते हैं प्रूफ। शुरुआती दौर पे हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये चीजें कहां से प्रूफ होंगी। एक बात ध्यान में समझिए, जो सबसे पहले आपको दिखाना है कि AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। इसका मतलब है कि ABX अगर हम ट्राइंगल लें तो हमें उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल है। लेकिन ये चीज दिखाएं कैसे? तो सबसे पहले एक बात ध्यान से समझिए, एक बार जरा इस क्वाड्रिलेटरल पर नजर डालिए कि सिंस इन क्वाड्रिलेटरल BOCX में D is the midpoint of BC and D is the midpoint of OX also. D is the midpoint of BC as well as OX। और अगर अब आप ये समझो कि ये दोनों डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? या ये कह सकते हो कि डायगोनल्स BC and OX bisect each other। और ऐसा किस में होता है? लास्ट ईयर भी पढ़ा था, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक पैरेललोग्राम में। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि BOCX इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब हो गया कि BOCX क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और जब ये पैरेललोग्राम है, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि BO इज पैरेलल टू CX। BO is parallel to CX। अब जब BO पैरेलल है CX के, तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट लाइन है, यानी कि दिस रिप्रेजेंट दैट कि BE is parallel to CX। कंप्लीट आ गया। सेकंड में जब ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेलल है तो लाइन दूसरी भी पैरेलल होंगी एंड OC is parallel to BX। OC क्या है आपका? That is parallel to BX। OC भी पैरेलल है BX के, it represent that कि CF is parallel to BX। CF क्या है आपके पास? That is also parallel to BX। क्लियर है? दो चीजें अब हमें यहां से मिल गई। BX इस पूरी लाइन के पैरेलल है, CX is parallel to this complete line। क्लियर है? Now in triangle ABX, अब बढ़ते हैं ट्राइंगल ABX की तरफ। ABX के अंदर ये जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस। अब ये भी दिखाया है, ABX OF इज पैरेलल टू BX। OF BX के पैरेलल है, सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि AF अपॉन FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन OX यूजिंग BPT। क्या करें? इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए।
एफ बी अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ओ एक्स अपॉन ए ओ। और अब क्या करते हैं भाई, जब हमें पूरी साइड लेनी चाहिए तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट एफ बी प्लस ए एफ अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ओ एक्स प्लस ए ओ अपॉन ए ओ। And this will represent that FB plus AF, FB plus AF, that is AB upon AF is equals to OX plus AO, OX plus AO, that is AX upon AO। या ये कह लीजिए, इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए। So this will represent that AF ratio AB will be equals to AO ratio AX। पहली चीज हमें यही प्रूफ करनी थी कि इन दोनों का रेशियो दैट इज सेम। अब बात आती है कि हमें यह भी दिखाना था कि EF इज पैरेलल टू BC। EF को BC के पैरेलल हम कैसे दिखाएंगे? अब देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब करता हूं या यहां पे कर देता हूं कि इन ट्राइंगल ACX, इन ट्राइंगल ACX OE is parallel to CX, OE CX के पैरेलल है। so this represent that AO upon OX is equals to AE upon EC। is it clear? अब एक बार ध्यान से यहां पर देखिए, AO upon OX is equals to AF upon FB and AO upon OX is equals to AE upon EC। अगर आप इस इक्वेशन को नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कह लो, चलो ये 3, तो 1 और 3 से क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get that AF upon FB is equals to AE upon EC। AF upon FB is equals to AE upon EC। और अगर हम ट्राइंगल ABC में बात करें तो जब AF upon FB is equals to AE upon EC, that is represent कि FE is parallel to BC। This represent that FE is parallel to BC and I think ये तो आप कर ही सकते हो, इतने तो मेरे बच्चे अब होशियार हो चुके होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So in this question it is given that ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है, CD का मिड पॉइंट P लिया और AC के ऊपर एक पॉइंट Q ले लिया, और Q क्या है, इस तरीके से लिया कि CQ is equals to 1/4 of AC। CQ पूरे AC का 1/4 पार्ट है। इज इट क्लियर? अब क्या किया गया, अब ये क्या गया कि PQ को मिला और आगे बढ़ा दिया R तक। नाउ यू हैव टू शो दैट कि BC का जो मिड पॉइंट है वो R है। ये हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले BD को और ज्वाइन कर लो बस इसके दूसरे डायगोनल को। अब BD का जो हमने जब डायगोनल ड्रॉ किया तो सपोज करते हैं ये मीट करते हैं O पर। प्रूफ क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन बीच में कर लिया कि हमने इसका जो डायगोनल BD भी ड्रॉ कर लिया और जो AC को O पर मीट करता है। अब जो डायगोनल्स होते हैं कि सिंस AC एंड BD bisects each other at O, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, O पर bisects करते हैं O पर। So this represent that कि जो OC है that is equals to half of AC। OC is the half of AC and since CQ is equals to 1/4 of AC, तो आप यहां से क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं, OC क्या है, हाफ ऑफ AC है, CQ क्या है, हाफ ऑफ AC है। अब यहां से एक बात देखिए कि AC क्या होता है, दैट इज 2 into OC। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि CQ क्या हो जाएगा फिर 1/4 इंटू AC की वैल्यू जरा याद रखिए 2 into OC, हाफ ऑफ OC। CQ हाफ ऑफ OC हो गया, इसका मतलब होगा कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। इट रिप्रेजेंट दैट कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC।
Q मिड पॉइंट है OC का और P मिड पॉइंट है CD का। सो इन ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल COD के अंदर P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ P किसका है, दैट इज CD, एंड Q किसका है, दैट इज OC रेस्पेक्टिवली। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि PQ इज पैरेलल टू DO। PQ क्या होगा, DO के पैरेलल होगा। अब क्योंकि PQ को ही आगे बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि PR इज पैरेलल टू DO की जगह पे पूरा लिख दीजिए DB। सो दिस रिप्रेजेंट दैट कि PR इज पैरेलल टू DB, इसका मतलब हो गया कि QR इज पैरेलल टू OB। QR क्या है, OB के पैरेलल है। तो नाउ इन ट्राइंगल COB, इन ट्राइंगल COB Q is the midpoint, Q is the midpoint of CO, एंड Q तो CO का मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड QR पैरेलल टू OB। सो दिस रिप्रेजेंट दैट क्या, कन्वर्स ऑफ BP, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था वो, इट रिप्रेजेंट दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का ये कन्वर्स है कि जब किसी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, इस ट्राइंगल में क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC गिवन है, ABC के अंदर एंगल B का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है BD। क्लियर है? एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है BD। PQ एक लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ कर दी है, जो कि AB को P पर काटती है, BD को R पर और BC को Q पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ यू हैव टू शो दैट PR इंटू BQ इज इक्वल्स टू QR इंटू BP। अब ऐसा क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई वाला, ऐसा तो हमने आज तक किया नहीं था। फिर क्या करेंगे भाई, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा सामने, हमें जो प्रूफ करना है, सबसे पहले इसी चीज को देख लो कि हम क्या करेंगे इसमें, दैट इज PR अपॉन में क्या कर सकते हैं हम, PR अपॉन QR को इधर ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू BP अपॉन BQ। अब कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ है, एक्चुअली हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। इसके बाद तो ये आ ही जाएगा कि PR अपॉन RQ दैट इज इक्वल्स टू BP अपॉन BQ। भाई एक बात तो बताइए कि जब ये लाइन AD बाइसेक्ट्स एंगल B, इसका मतलब BR ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल B। प्रूफ में देखिए तो जो हम शो कर रहे हैं, दैट इज कि सिंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B, BD क्या करती है, एंगल B को बाइसेक्ट करती है, या ये कह लीजिए कि BR बाइसेक्ट्स एंगल B। सो इन ट्राइंगल BPQ, सिर्फ बाकी चीज को भूल जाइए, सिर्फ ध्यान दीजिए BPQ के अंदर, BPQ के अंदर BR बाइसेक्ट्स एंगल B। So this represent that एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि BQ या BP अपॉन BQ इज इक्वल्स टू PR अपॉन QR। ये तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था, और अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस रिप्रेजेंट कि PR इंटू BQ इज इक्वल्स टू QR इंटू BP। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, जो कि रिलेटेड होगी किससे, सिमिलरिटी से।
कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके द्वारा हम उन्हें सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है भाई? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज और इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दोज। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।